الذین وہ لوگ یدعون من دون اللہ یدعون جو پکارتے ہیں یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا جو پکارتے ہیں شرکاء شریکوں کو پکارتے ہیں ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا مگر الظن گمان کی نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی الا خبردار بے شک زمین و آسمان اللہ کے لیے ہی ہے اور وما یتبعو اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ یدعون جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکاء کو ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی ان ہم الا یخرصون اور ان ہم اور نہیں ہے وہ الا مگر یخرصون وہ خود ہی گھڑتے باتوں کو یعنی کہ اٹکل پچو لگاتے خود ہی باتوں کو گھڑتے یا اٹکل پچو لگاتے خود ہی والذی وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا ہے لکم تمہارے لیے اللیلہ رات کو بنایا ہے تمہارے لیے لتسکنو تاکہ تم سکونت اختیار کرو فیہ اس کے اندر تم کیا کرو سکون کرو والنہارا اور دن کو بنایا ہے مبصراً دکھانے والا روشن اور دن کو بنایا ہے دکھانے والا روشن دن کو کیا بنایا دکھانے والا روشن بنایا ہے ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ایسے لوگوں کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کیا ہیں سنتے ہیں قالو انہوں نے کہا کنہوں نے کہا جنہوں نے اتخذ اللہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ ولد اتخذ بنا دیا اللہ کو ولدن اولاد یعنی کہ اللہ کی اولاد بنا لی انہوں نے کہا بنا لیا اللہ کی اولاد سبحانہ وہ پاک ہے وہ مبرہ ہے وہ ان تمام چیزوں سے بری ہے هو الغنی وہ غنی ہے لہو اس کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اللہ خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکاء کو نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اور نہیں ہے وہ مگر خود گھڑتے باتیں اور خود گھڑ کر باتیں کرتے ہیں وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکونت اختیار کرو اس میں اور دن کو بنایا ہے دکھانے والا روشن بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اولاد سبحانہ وہ پاک ہے هو الغنی وہ غنی ہے لہو اس کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اسی کے لیے ہیں ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی بھی دلیل بہذا اس کے ساتھ کوئی بھی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی دلیل بہذا اس بات کی تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون ما وہ چیزیں لا تعلمون جن کا تم علم نہیں رکھتے کل کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر الکاذب جھوٹ لا یفلحون نہیں وہ کامیاب ہوں گے متاعن تھوڑا فائدہ ہے فی دنیا کی زندگی میں ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعہم ان تمام کا لوٹنا ہے ثم پھر نذیقہم پھر ہم چکھاتے ہیں ان کو العذاب عذاب ہم ان کو چکھاتے ہیں الشدیدہ سخت عذاب ہم ان کو چکھاتے ہیں بما باسبب اس کے کانوں تھے وہ یکفرون جو وہ کفر کرتے تھے کہہ دیجئے بے شک کل کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ جن نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تھوڑا فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں پھر ہماری طرف ان تمام کا لوٹنا ہے پھر ہم چکھاتے ہیں ان کو عذاب سخت بما باسبب اس کے کانوں تھے وہ جو کفر کرتے تھے ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں ان کو عذاب چکھاتے ہیں اللہ یہاں پہ بھی حرف تنبیہ ہے خبردار کرنے کے لیے ہے اللہ خبردار ان بے شک للہ اللہ کے لیے ہے من جو کچھ فی السماوات آسمانوں کے اندر ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے چاہے وہ ذویل کول کی صورت کے اندر ہو جاندار ہو بے جان ہو جون سی بھی چیزیں ہوں تمام کی تمام جو ہے نا ان کا مالک اور خالق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ فرشتے ہوں وہ جن ہوں وہ حشرات کیڑے مکوڑے ہوں تمام کا خالق جو ہے
तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए हैं क्योंकि बनाई ही उसी ने है। वमा यत्ताबिउ और नहीं पैरवी करते अल्लाह जीना वो लोग यदऊना जो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा शुरका को, वो उनकी इबादत ही इबादत नहीं शुमार की जाती। वमा यत्ताबिउ नहीं वो पैरवी करते अल्लाह जीना उन लोगों की यदऊना जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा शुरका शरीकों को, जिन बुतों की जिन पीरों की ये इबादत करते हैं, जिनके कब्रों के ऊपर जाके नजराने पेश करते हैं, ये दरअसल उन लोगों की भी इबादत नहीं कर रहे। उन्होंने इनको नहीं कहा कि हमारी इबादतें करो, उन्होंने इनको नहीं कहा। इन यत्ताबिऊना नहीं ये पैरवी करते इल्ला मगर ज़न्ना गुमान की पैरवी करते हैं। ये किसकी पैरवी करते हैं? गुमान की। अपनी अकल के बलबोते क्या करते हैं? ये उसकी पैरवी करते हैं, अकल के बलबोते ये चलते हैं। व इन हम नहीं है ये इल्ला मगर यखरुसूना खुद घड़ के बातें करते हैं। किससे सुनने लग जाए, इनसे बातें सुनने लग जाए, इनसे बैठे बैठे बड़े बड़े ढगसले छोड़ेंगे। ये पीर साहब ने कर दिया, ये कर दिया पीर साहब ने। एक वो पीर साहब मशहूर हुआ है, क्या नाम है उसका, नहीं ताज रसूल है, बड़वावड़ा शरीफ है, क्या है, किसी फेसबुक के ऊपर भी बड़ा चलता है, हाँ जी, और लाल भी पहनता है तो उसकी टोर भी अजीब सही है। बलावड़ा शरीफ है, बलावड़ा शरीफ, हाँ जी, वो दम करता है, वो शुभ शुभ वाली सरकार है, हाँ शुभ शुभ वाली सरकार, वो जी फूक मारता है, तमाम लोग सामने बैठे शिफा याब हो जाते हैं। वो भाई इतना बड़ा, अच्छा जी पीर साहब ने फूक मारी है, अंदर से गोलियां निकल आई हैं, बंदूक की गोलियां। वहाँ जी पाकिस्तान को और क्या चाहिए, लोहे के कील निकल आए। भाई ये फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, पीर साहब के फूक से तैयार होती हैं। पाकिस्तान का इतना मटेरियल खर्च होता है, इतने लोग जो है ना वो बेचारे तंग हो जाते हैं। पीर साहब फूके मारते जाएं, किल भी हमें देते जाएं, ये गोलियां भी देते जाएं, जदीद मिसाइल भी तैयार होते जाएं, और क्या चाहिए। बैठ जाओ, इनके पास बड़े बड़े ढगसले छोड़ते हैं, इनकी बातें नहीं माननी, ये गुमान की पैरवी करते हैं, हकीकत के अंदर कोई बात भी नहीं होती, ये खुद घड़ के बातें करते हैं, खुद ही खुद। अच्छा जिनको कहा जा रहा होता है ना, उन्हें पैसे दिए जा रहे होते हैं कि आपको पैसे दिए जाएंगे, आप ये बात आपने ये करनी है, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने ये खुद ब खुद जो है ना ये बात कर देनी है, तो वो खुद कर देते हैं बात, पैसों की लालच के अंदर वो कर देते हैं। हकीकत कोई चीज़ भी होती, हकीकत कुछ भी होती, तो जो लोग उसके खिलाफ हैं वो उनको चुप करवा के दिखा दें। भाई जो अपने आप को रोकने पे, तकलीफ पे, अपने पे कादिर नहीं है, वो तुम्हारा कादिर किस कदर हो सकता है। ये सिर्फ सारी की सारी जो है ना वो गप्पे नहीं, वो पैरवी करते मगर गुमान की। इन यत्ताबिऊना नहीं वो पैरवी करते इल्ला मगर जन्ना गुमान की। व इन हम और नहीं है वो इल्ला मगर यखरुसूना वो खुद गढ़ कर बातें करते। हाँ जी, यखरुसून का क्या तर्जुमा है? हाँ जी अब्दुल्ला, यखरुसून का क्या तर्जुमा है? बता रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको, अल्लाह बता रहा है तो शर्म आती है थोड़ी बहुत। इस ढक्कन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, तवज्जो करें। अच्छा इल्ला मगर यखरुसूना वो खुद घड़ कर बातें करते हैं, मगर वो खुद घड़ कर बातें करते हैं। वल्लज़ी वो ज़ात है जाअला जिसने बनाया है लकुम तुम्हारे लिए अल्लैला रात को बनाए, लितस्कुनु ताकि तुम सुकूनत अख्तियार करो फी इसमें, रातों को आराम करना है, रातों को जागना नहीं है, रातों को आराम करना है, रातों को मोबाइल को वक्त नहीं देना, रात को आराम करने के लिए अल्लाह ने रात आराम करने के लिए बनाई है। वन्नहारा और दिन जो है मुबसिरन दिखाने वाला रोशन बनाया है। देखो दिन के अंदर जो देख रहे हैं मोबाइल को, दिन के अंदर वक्त दें, रात के अंदर आराम करें। आराम से क्या मुराद है? पहले वक्त के अंदर आराम करें, आखिरी वक्त के अंदर जाग के तहज्जुद पढ़ें, नमाज पढ़ें। ये पता है क्या, ज़िंदगी की कदर बंदा अब नहीं करता, जवानी की कदर अब नहीं करता। जब हो जाता है ना बुढ़ापे, तस्बीहें हाथ में, मन के हाथ में, फिर पता लगता है कि जो है ना वो काश जवानी के अंदर कदर कर लेते हैं। वो जो काश जो है ना, काश वाला मेंढक वो समंदर के दूर किनारे पे बैठ के काश काश करता रहता है कि काश के मैं समंदर से बाहर ना निकलता। वो काश, उसकी काश काश रह जाती है। वो भाई जो समंदर के अंदर चला जाता है उसकी काश ख़त्म हो जाती है। जो समंदर की मौजों से टकराना जानता है ना, उसे काश माश कुछ नहीं करता, वो कहता है टकराए जो आता है। ये फिर आखिरी वक्त के अंदर जाके, बुढ़ापे के अंदर जाके मना कहता है कि वो रातें जिस वक्त नींद भी जल्दी पूरी हो जाती थी, पासे मार मार थक पौने उठते नहीं, दो रकता पढ़ने से वह नींद, भाई नींद अल्लाह ने पूरी कर दी है तो खड़े हो जाएं, 2 रकते पढ़ लें, तो उसके लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर निखार आ जाएगा। ये इर्ज़ जान बने।
हुवल्लज़ी, वो ज़ात है, जाला, जिसने बनाया है, लकुम, तुम्हारे लिए, वो ज़ात है जिसने बनाया है तुम्हारे लिए। क्या बनाया है? लैला, रात को बनाया है। क्यों बनाया है? लितस्कुनु, ताकि तुम सकूनत अख्तियार करो। किसके अंदर? फी, इसके अंदर। किसके अंदर? रात के अंदर तुम सकूनत अख्तियार करो। वन्नहारा, और दिन को बनाया है। क्या दिन को बनाया है? मुबसिरन, दिखाने वाला, रोशन बना दिया है, हर तरफ रोशनी कर दी है। इन्ना, बेशक, फिज़ालिका, इसमें लायातिन, अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिकौमिन, ऐसे लोगों के लिए, यस्माउन, जो सुनते हैं। ऐसे लोगों के लिए निशानियां जो क्या करते हैं? सुनते हैं। बिजली की कड़क को सुनते हैं, बारिश के कतरात को सुनते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो पौधों की आहट को सुनते हैं। पौधे किस तरह बड़े होते हैं? जिस तरह इंसान के कदमों की आहट है, इस तरह पौधों के भी आहट है। पौधे किस तरह बढ़ते हैं, ये तो आज साइंसदानों ने तहकीक करके और उस आवाज़ को कैच करने की भी कोशिश की है। और ऐसा भी सुनने को मिला है कि अब साइंसदान वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले की आवाज़ें जो पहुंच चुकी हैं, जो फिज़ा के अंदर कायम है, कि उनको भी दोबारा कैच किया जाए। किया जा रहा है और होनी भी चाहिए और हो भी रही हैं। ऐसे लोगों के लिए निशानियाँ जो क्या करते हैं, भाई इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ, एक सूरज बनाया है, रात को एक चांद बनाया है, तमाम चांद जो है तमाम फलों के अंदर वो मिठास पैदा कर देता है, सूरज हर जगह पे रोशनी कर देता है। ये इतनी बड़ी निशानी है, जो इसको देख ले, जो सुन ले, जो जान ले, उस बंदे के लिए, हिदायत के सरचश्मे के लिए यही बात काफ़ी है। अल्लाह को मानने के लिए यही दलील काफ़ी है। काल, उन्होंने कहा, इत्तखज़ल्लाहु, बना लिया अल्लाह ताला ने, वालदन, औलाद। ये कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे देते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। भई अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला औलाद से मुबर्रा है। औलाद की उसको ज़रूरत होती है जो बूढ़ा हो जाए, जिसको ऊँग आ जाए, जो किसी तकलीफ़ के अंदर हो जाए। वो भाई जिसे ऊँग भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, जिसको कोई तकलीफ़ भी नहीं है, उसको क्या ज़रूरत है औलाद की? फरमाया कि सुबहान हो, अल्लाह ने खुद ही जवाब दे दिया है। वो तमाम का तमाम जो है, जो तुम बातें करते हो कि अल्लाह ने औलाद बना लिया, अल्लाह इस बात से मुबर्रा है, अल्लाह इस बात से पाक है। तुम कहते रहो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, अल्लाह की कोई औलाद भी नहीं है। वल गनी हो, वो गनी है, वो तुम्हारी इन बातों से बेपरवाह है। तुम बातें करते रहो, वो तुम्हारी बातों को ध्यान भी नहीं धरता। यहाँ पे हमें एक बड़ी अच्छी बात समझाई गई है कि लोग आप पे कोई तानो तशनी करें, आपको कोई तकलीफ़ देना चाहें, तो आप उनसे बेपरवाह हो जाएं, उनकी बात को अहमियत ही ना दें। याद रखें, बंदा कोई मुकाबला हो ना, मुकाबला हो, बंदा जीत के इतनी खुशी नहीं महसूस करता जितनी बंदा हार के खुशी महसूस करे, और दूसरे बंदे की जीत हार में तब्दील हो जाती है। यही बात बताई गई है कि आपने बेपरवाह हो जाना है। वो कहें कि हम जीत गए, आप बेपरवाह हो जाएं। तुम्हारी जीत किस चीज़ की है? तुम कहो कि हम जीते हैं। आपकी हार भी आपकी जीत बन जाए तो आप उनकी जीत से बेपरवाह हो जाएं, आप अपनी जीत बना लें। लाओ, उसके लिए माफिस समावाती, जो कुछ आसमानों के अंदर है, वो माफिल अर्दी, और जो कुछ ज़मीनों के अंदर है। इन नहीं है इंदकुम, तुम्हारे पास, मिन सुल्तानिन, कोई भी दलील नहीं है, बिहाजा, इस बात की जो तुम कहते हो कि अल्लाह की औलाद है, इस बात की तुम्हारे पास कोई भी दलील नहीं है। अतकुलूना, क्या तुम कहते हो? यहाँ पे भी आ जो है ये हरफ़े तंबी है। क्या तुम कहते हो अल्लाह, अल्लाह ताला पर तुम कहते हो माँ, वो बातें, ला तालमूना, जिन बातों का तुम इल्म भी नहीं रखते। ना तुम्हारे पास कोई दलील है, ना तुम्हारे पास कोई इल्म है, तुम किस तरह कह देते हो अल्लाह की औलाद है? कैसे कहते हो अल्लाह की औलाद है? कैसे कहते हो? फिर बस औकात, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोगों से, जो लोग होते हैं कि अल्लाह की ज़ात के अंदर शक करते हैं। वो कहते हैं जो है ना, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत अल्लाह ताला की बीवी हैं, और अल्लाह ताला ने जो है वो हमबिस्तरी की है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से, और उनके बतन से पैदा हुए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यानी कि ये अल्लाह पे इतनी बड़ी तोहमत लगाते हैं। अल्लाह ने कहा है कि ऐसी बातों से मेरे भाई आपने बेपरवाह रहना है, ऐसी बातों की टेंशन नहीं लेनी, लोगों के इल्ज़ामात की परेशानी और टेंशन नहीं लेनी। कुल कह दीजिए, इन्ना, बेशक अल्लाह जीना, वो लोग, यफ्तरूना, जो बांधते हैं, अल्लाह, अल्लाह ताला पर, अलकाज़िबा, झूठ बांधते हैं, ला युफ्लिहूना, ये कामयाब नहीं होंगे। भाई दुनिया के अंदर किसी पे झूठ बांध दो, दुनिया के अंदर वो माफ़ नहीं करता, और अल्लाह कह रहे हैं कि वो बंदे माफ़ होंगे ही नहीं। और अल्लामा शुकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे बंदे कामयाब ही नहीं होंगे।
علامہ شوکانی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کامیاب ہی نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ بڑی اہم چیز ہے متاعن کے اوپر، عین کے اوپر جو دو تنوینیں لکھی گئی ہیں، اس کا معنی ہے تھوڑا، متاع کا معنی ہے فائدہ، متاعن تھوڑا فائدہ ہے، فی دنیا کے اندر۔ یہ تنوین جو ہے نا، تنوین تقلیل کے لیے ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا معنی تھوڑا ہے، دو پیش جو ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ متاعن تھوڑا فائدہ ہے، فی دنیا کے اندر، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے دنیا کو قلیل قرار دیا ہے، دنیا کو حقیر قرار دیا ہے کہ دنیا تھوڑی دنیا ہے۔ ثم پھر دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے۔ اچھا، جب ہمارے پاس آ جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ ثم پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب عذاب چکھائیں گے، الشدیدہ سخت عذاب چکھائیں گے، معمولی عذاب نہیں، چھوٹا موٹا عذاب نہیں، سخت عذاب ان کو چکھائیں گے۔ ان کو جب وہاں پہ تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں گی، وہاں پہ پتہ لگے گا کہ سخت عذاب سے کیا مراد ہوتا ہے اور سخت عذاب کسے کہتے ہیں۔ جو جہنم کا پیچھے اور سخت عذاب کا ذکر کر کے آیا تھا، وہ بات آپ کے ذہنوں کے اندر یہاں پہ آ جانی چاہیے۔ بما اس بات کے بعد سبب کانو تھے وہ یکفرون جو وہ کفر کرتے تھے، اس بات کے بعد سبب ان کو کیا کیا جائے گا؟ عذاب چکھایا جائے گا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ بما با سبب اس کے، کانو تھے وہ یکفرون کفر کرتے، بما با سبب اس کے، ہاں جی ہاں جی، عمل کرتے ہیں، ما لا تعلمون، ما ان باتوں پر، لا تعلمون جن پر تم عمل نہ کرتے، عمل نہ کرتے، لا نہ، ہاں جی ہاں جی۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ہاں جی۔ ولدن اولاد، وہ پاک ہے، کون پاک ہے؟ اللہ پاک ہے۔ آگے، وہ غنی ہے، لہو اسی کے لیے، آسمان اور زمین اسی کے لیے۔ ہاں جی، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ لیں۔ اس اعتبار سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، سید محمد ارسلان شاہ بخاری، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تھکاوٹ ہوئی ہے آپ کو آج زیادہ، ہے نا؟ کوئی ایک بات سمجھ نہیں آئی، آگے یہ سب باتیں۔ اچھا، یخرسون کا کیا معنی ہے شرجیل؟ یخرسون، 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 ہاں جی اسامہ شاہ صاحب، یخرسون، ہاں خود گڑتے ہیں، یا دوسرا منع کر لیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اچھا چلیں چلیں چلیں، بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، حدیث نکال لیں۔ کوئی سوال شاہ صاحب؟ کیا کریں، روزانہ کے 2-3 سوال کیا کریں، ان بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتا، جس زندگی کے اندر آپ ہیں یا ہم ہیں، ہمیں نہیں پتا ان چیزوں کا، کیونکہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ ہم ابھی پریکٹیکل زندگی کے اندر نہیں گئے، جائیں گے تو واسطہ پڑے گا تو پھر پوچھیں گے۔ ہاں جی، جھوٹ باندھے وہ یار، با سبب کانو تھے وہ اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ ہاں جی شاباش۔ سمیر بھائی یہ نا 29 نمبر حدیث جو ہے نا آپ پڑھائیں، ہمیں پڑھائیں، پڑھائیں، ہاں جی پڑھائیں آپ، ہاں جی، اعتراف گناہ اور توبہ کا فائدہ کھول کے پڑھائیں، سمجھائیں، ایک ایک بات سمجھائیں ہمیں۔ آپ اس طرح کریں، ہم سب پڑھنے والے ہیں آپ سے، آپ نے پڑھانا ہے ہمیں۔ سب چیزیں الف سے یا تک بیان کرنی ہیں۔ آپ پڑھا رہے ہیں، یوں سمجھیں کسی کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، سب آپ کو علم ہے بس۔
ہاں جی ہاں جی ہاں جی، سب آپ نے پڑھانا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، ہمیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، نہ ہمیں ان کا ترجمہ پتہ ہے، نہ رضی اللہ عنہ کا کسی بات کا علم نہیں ہے۔ ہاں جی، فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں۔ اور سلامتی ہو، اور سلامتی ہو، وسلم اور سلامتی۔ صحیح صحیح ہے، صحیح، آپ پڑھائیں، آپ خاموش رہیں بھئی، آپ کے استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ کو خاموش رہنا ہے آپ نے۔ چلیں، ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے، اب سمجھائیں کیا بات ہوئی ہے۔ سلسل ذیل کفل، ہاں، قد غفر اللہ ذیل کفل ہے۔ چلیں، ہاں جی ذہن میں آ گیا ہے۔ حنزلہ بھائی آپ نے پڑھانی ہے ہمیں حدیث، چلیں 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 چلیں، ہمت کریں ہمت کریں، ایسے ہوتا ہے، چلیں 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 چلیں، ادھر آنا چاہتے ہیں ادھر آ جائیں، چلیں 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 چلیں، ارسلان بھائی آپ پڑھائیں۔ یہ شرماتے ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کانفیڈنس کوٹ کوٹ کے رکھا ہے، آپ پڑھا دیں۔ چلیں شاہ صاحب چلیں، پڑھا سکتے ہیں آپ، سمجھا دیں، آپ نے لیکچر دینا ہے اس حدیث پہ، آپ کو موضوع دیا گیا اعتراف گناہ اور توبہ کا فائدہ بیان کرنا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ چلیں چلیں چلیں، ٹائم تھوڑا ہے یار، چھوڑیں، ہاں جی آپ بتا دیں، بس آپ سمجھا دیں ان کو۔ ان العبد، بے شک بندہ، اذا جب اعتراف کرتا ہے، ثم پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، علیہ اس کی، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر، جو انسان سے غلطی ہو گیا بندہ اس چیز کا ارادہ اس کی پہلے توبہ کر لے اور اس گناہ سے دور ہو جائے، دوبارہ اس کی توبہ نہ کرے، اور اس کے جو گناہ کیا اس نے اور اس کی بار بار اس کے لیے توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی شرجیل بھائی آپ پڑھا سکتے ہیں، کل پڑھائیں گے، ہاں جی ہاں جی چلیں، میں نے یہ کل بتا دیا تھا، جو حدیث ہم نے پڑھنی ہے اس حدیث کا کسی بھی بھائی نے درس دینا ہے، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل بتا دیا تھا ویسے میں نے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیسے کرتے ہیں، ہاں جی ہاں جی چلیں، بڑی اچھی نصیحت کیا انہوں نے، پلے باندھنے والی ہے۔
ٹھیک ہے آپ نے خاموش رہنا ہے میرے بھائی، وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں ہم نے سننا ہے بس. ماشاءاللہ زبردست بھی زبردست چھا گئے ہیں آپ، بہترین ہو گئے ہیں. آگے دیکھ لیں استغفار کی برکتیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، ہاں جی، یہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے نا انہوں نے زندگی بسر کی ہے، دو علاقوں کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس السلام پورا ان کا یہ ہے، عن ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس ایک ہی بات ہے. یہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مدینہ کے اندر بھی رہے ہیں، اور ان کو دفن جو ہے وہ طائف کے اندر کیا گیا ہے. ان کو مدفن طائف کے اندر کیا گیا ہے. ان کو طائف کے اندر مدفن کیا گیا ہے. ہاں جی ہاں جی وفات انہوں نے پائی ہے 2 کم 70 سال کی عمر کے اندر انہوں نے وفات پا لی تھی. 68 سال کی عمر کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے. 68 سال کی عمر کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے. ہاں جی 32 ہجری نہیں ہے، میں ہجری کے جو ہے نا وہ کافی اقوال تھے، اس لیے میں نے ہجری چھوڑ دی ہے. ہجری میں اختلاف تھا اس لیے اس کو آپ چھوڑیں. بس آپ جو ہے نا 2 کم 70 سال ان کی عمر تھی. طائف کے اندر جو ہے نا ان کو دفن کیا گیا ہے. مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے نا انہوں نے زندگی بسر کی ہے. مکہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، دفن ان کو طائف کے میدان کے اندر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا سب سے پیاری بات ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا، تو ان کے کفن کے اندر سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے اندر ایک اجنبی پرندہ جو آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، ان کے کفن کے اندر گیا اور یہ کلمات کہنے لگ گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ پرندہ داخل ہو کے اس کے اندر سے یہ آوازیں آنے لگ پڑی. مطلب کیا ہے کہ اے نفس مطمئن ہو جا، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور تو داخل ہو جا جنت کے اندر، جو ہے نا تو داخل ہو جا. یعنی کہ میت کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ہمیں وہ پرندہ نہیں ملا، ہمیں پرندہ نہیں ملا. پرندہ جاتا ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے اس پرندے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں ملا، پھر ہم نے چھوڑ دیا. اسی طرح ہم نے دفن کیا تو ہم نے پھر ایک قبر کے کنارے سے بھی یہی آواز سنی سی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے رب کے حکم کے ساتھ جو ہے نا وہ جنت کے اندر کیا ہو، داخل ہو جا. ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مفسر قرآن تھے، اپنے وقت کے مفسر قرآن تھے، جس کی وجہ سے قرآن سے محبت، قرآن کی تفسیر سے محبت کی وجہ سے اللہ نے ایک اجنبی پرندہ بھیج دیا اور آخری عمر کے اندر یہ نبی نہ ہو گئے تھے. اور ان کو دین کا علم حاصل کرنے کی اتنی تڑپ، اتنی یہ محنت کرتے تھے دین کے لیے. پتہ لگ جاتا تھا کہ کسی صحابی کے پاس وہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی روایت ہے، تو جا کے گرم دھوپ کے اندر جا کے دروازے کو دیکھتے بند ہوتا، کیلولے کا کسی کا وقت ہوتا تو دروازے کی ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ جب یہ باہر آئیں گے صاحب تو پھر ان سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوں گا. فرماتے ہیں ہوا چلتی تھی، لو ہوتی تھی، جس کی وجہ سے چہرے پہ جو ہے نا وہ جسے
जैसे हम कहते हैं कि साड़ा मच गया है, चेहरे गर्म हो जाता था, बाल जो हैं वो परगंदा हो जाते थे, लेकिन बैठे रहते थे कि ये साहब बाहर आएंगे तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखूंगा। यही वजह है कि उनकी मौत को अल्लाह ताला ने पकीज़ा बना दिया है, मेरे और आपके लिए ये एक नमूना बना दिया है। अगर हम भी कुरान से मोहब्बत करेंगे हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है। उन्होंने मोहब्बत की है इसके साथ, तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने इतना मकाम जो है ना इनको अता की है। और इनकी पैदाइश जो है ना मक्का के अंदर जो घाटी शेब अबी तालिब हमने पढ़ी है, मक्का के अंदर घाटी शेब अबी तालिब जो पढ़ी है, उस घाटी के अंदर जब रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे इनकी जो है ना पैदाइश हुई है। वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वहाँ पे पैदाइश हुई है। और उसके बाद ये ऐसे खुश नसीब बंदे हैं जिसको घुट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। लुआब मुबारक इनके मुँह के अंदर रखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब रखा है। तो ये दलील नहीं है, बात हो गई है। घुट्टी का इसलिए जिक्र किया है कि सारी बात वाज़ेह हो जाए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दे के बस वो कहते हैं कि शहद के साथ ही दी जाए, ज़रूरी लाजिम नहीं है कि शहद के साथ ही दी जाए। बाकी लुआब जो है वो किसी नेक बंदे का, वली बंदे का, किसी मुहद्दिस बंदे का दिलवाएं ताकि बच्चा नेक हो जाए। और ये होता भी ऐसे है कि घुट्टी का बहुत ज़्यादा असर होता है, तबीयत पे बहुत असर पड़ जाता है। वो कोई सख्त बंदे की दीवा है ना, सारी ज़िंदगी तो अपने चाचे पे गया है, अपने मामे पे गया है, आपने पुपियाँ थे गए हैं, तो हैं ये कहते हैं वो घुट्टी का बड़ा असर होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने ख़ानदान को राज़ी करने के लिए ऐसा बंदे को दिलवा देते हैं जो सड़ियल होता है या सख्त मिजाज का होता है, वो बच्चा सख्त मिजाज का बन जाता है। ऐसे बच्चे के साथ आप घुट्टी उससे दिलवाएं जो नरम मिजाज है, जो खुश मिजाज है नहीं, उससे घुट्टी दिलवाएं। ये बातें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से याद रहनी चाहिए। जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से याद थी, उस तरह इनके हवाले से भी आपको ज़हन नशीन रहनी चाहिए। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये बात याद रखें कि हिजरत से 3 साल कबल जो है ना, हिजरत से 3 साल कबल जो है ना ये मुसलमान हो गए थे। हिजरत से 3 साल कबल ये मुसलमान हो गए थे। हिजरत से 3 साल कबल, मक्का से हिजरत की थी ना मदीना की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उससे 3 साल कबल ये मुसलमान हो गए थे। अच्छा जी, और कोई भी बात मेरे ख्याल नहीं रहती। ये आखिरी उम्र के अंदर नबीना हो गए थे, ये बात हो गई है। जुबैर, सईद बिन जुबैर, सईद बिन जुबैर ये ताबी हैं। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह ताबी हैं। हाँ जी, आखिरी उम्र के अंदर ये नबीना हो गए थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ जी, मालिक बिन रबिया भी हो गए थे। ये आपको अब ज़हन नशीन होने चाहिए कि कौन कौन सा सहाबी नबीना हो गया था, है जी, ये आनी चाहिए। और मारूज़ी के अंदर बड़ा अहम सवाल बन सकता है। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, काला फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लाजिम अल इस्तिग़फ़ारा, मन जो शख्स लाजिम करता है, ज़रूरी करता है इस्तिग़फ़ार को, जअलल्लाहु बना देता है अल्लाह ताला लहू उसके लिए, मिन कुल्लि ज़ीकिन हर तंगी से, मिन से कुल्लि हर ज़ीकिन तंगी, हर तंगी से मखरजन निकलने का रास्ता बना देता है। अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। वह मिन कुल्ली हम मिन फराजा, और हर गम से निजात का रास्ता जो है ना वो अल्लाह ताला बना देता है। वो मिन और से कुल्ली हर हम मिन गम से फराजन निकलने का रास्ता जो है ना अल्लाह ताला बना देता है। व रज़ा कहू, और अल्लाह रिज़्क़ देता है उसको, मिन हैसु ऐसी जगह से, ला यहतसिबु जहाँ से वो बंदा गुमान भी नहीं करता। जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है और मुखलिस हो के अल्लाह ताला की इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसकी जो है ना उसको ऐसी तंगियों से निकाल देता है, उसके तंगियों के रास्ते अल्लाह ताला आप आसान कर देता है। हमारे अंदर पता है क्या है जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 दफ़ा पढ़ा है यार, परेशानी दूर नहीं होगी, पढ़ने का फ़ायदा नहीं है भाई। 100 दफ़ा दूर नहीं होता पढ़ने से, उसका विर्द आप 500 दफ़ा कर दें। 500 पढ़ने की वजह से फिर भी वो परेशानी दूर नहीं होगी, 1000 दफ़ा कर दें। 1000 दफ़ा पढ़ने से नहीं हो रही, 2000 मरतबा कर रहे हैं, ज़्यादा करते जाए। हाँ जी,
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम ये पढ़ें। ये दुआएं अपना हिर्ज़ जान बना लें। कोई तकलीफ़ आपको आ गई है जहाँ से आपका निकलना नामहाल हो गया, आपका निकलना मुश्किल हो गया, कोई आपका साथी जेल के अंदर चला गया है, जेल के अंदर से छुटकारा बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उससे ये कहें कि आपने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे भाई आपने दिन और रात ये विर्द करना है और इस यकीन से करना है जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल दिया था, आपको अल्लाह ताला जेल से निकाल देगा। मछली से पेट से निकलना कोई मामूली बात नहीं है और ना ही कोई निकाल सकता है। ये अल्लाह की बात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था और हाँ जी हाँ मुंह के ज़रिए अल्लाह ताला ने निकाल दिया था, मुंह के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया था। हाँ जी मिन कुल्ली ज़ीकिन हर तंगी से, मिन से कुल्ली हर ज़ीकिन तंगी मखरजन निकलने का रास्ता, हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला बना देते हैं। एक फ़ायदा पहला ये होता है कि तंगी से जाला बनाता है अल्लाह, अल्लाह ताला बनाता है अल्लाह लहू उस बंदे के लिए जो बंदा क्या करता है इस्तिग़फ़ार करता है। मिन से कुल्ली हर ज़ीकिन तंगी मखरजन निकलना, हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला उस बंदे के लिए बना देता है जो बंदा क्या करता है इस्तिग़फ़ार करता है। वह मिन कुल्ली और हर मिन गम से फ़रजन निजात दे देता है, हर गम से क्या कर देता है निजात दे देता है। गम से निजात देना ये सिर्फ अल्लाह का काम है, गम से कोई बंदा भी नहीं निकाल सकता, अल्लाह ताला गम से भी निकाल देता है। वरज़क़हू और रिज़्क़ देता है हू उसको मिन हैसु ऐसी जगह से रिज़्क़ दे देता है ला यहतसिबु जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता, अल्लाह ताला फिर ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमा देता है। ज़िक्र करने के 3 फ़ायदे हैं, याद रखें, बड़ा अहम सवाल है। ज़िक्र करने के कितने फ़ायदे हैं वो फ़ायदे लिखें, पहले बताएं कि ज़िक्र करने के कितने फ़ायदे हैं। भाई 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला हर तंगी से निजात दे देता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला हर गम से निजात दे देता है। तीसरी बात है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ ऐसी जगह से अता कर देते हैं जहाँ से उस बंदे का गुमान भी नहीं होता, जहाँ से बंदा वो सोचता भी नहीं है, अल्लाह ताला फिर ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमा देता है। बसा औक़ात अल्लाह ताला ऐसा गाहक भेज देते हैं, बंदा बड़ा परेशान होता है, यार 5-7 दिन हो गए यार बिक्री नहीं हुई, अल्लाह ताला लाख 1.5 लाख का इकट्ठा गाहक भेज देता है, 3-4 लाख का अल्लाह इकट्ठा गाहक भेज देता है, अल्लाह ताला तंगी से निकाल देता है। गाहक ना आए ना, आवाज़ें दूर है, आओ वञो इधर, इससे आवाज़ों से बेहतर है मेरे भाई आप ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम का विर्द करें। कारोबार के अंदर कोई नुकसान हो रहा है, आप ये विर्द करें, आप ये विर्द करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, आवाज़ें देने की ज़रूरत नहीं होगी। भाई जब आपने अल्लाह को बुला लिया है, लोग क्या दे देंगे आपको, आप बुलाएंगे, आप उनकी मिन्नत समाजत करके कोई वो चीज़ उनको दे देंगे, आप अपनी इज्जत भी कम करेंगे। किसी को कोई आवाज़ें ना दें बल्कि आवाज़ दें अल्लाह को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमको कोई भी चीज़ मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, अगरचे तुम्हारे जूते का तस्मा भी गुम हो गया है ना, वो भी किसी से ना मांगो, उस तस्मे का भी सवाल अपने अल्लाह से करो। किसी से ना कहो कि मुझे तस्मे की ज़रूरत है, बल्कि अल्लाह को कहो कि मुझे क्या ज़रूरत है, तस्मे की ज़रूरत है। अल्लाह से कहो कि मुझे रिज़्क़ की ज़रूरत है। फिर जो है ना टेंशनें परेशानियाँ सारे दिन की मसरूफ़ियत, अल्लाह एक ही गाहक ऐसा भेजेगा जो 1000-2000 का होगा, 100-200 वाला गाहक फिर आएगा ही नहीं। हाँ जी हाँ जी नीयत भी हो और दिल के अंदर ये इरादा करके पढ़ें। कोई बंदा ज़ुबानी हदीस सुना दे, कोई बंदा ये ज़ुबानी हदीस सुना दे, आती है किसी को अरबी के अंदर कोई बंदा ज़ुबानी हदीस ये सुनानी चाहे, यही ज़ीकिन मखरजन हम मिन फरजन। अगो रिज़्क़ की बात आ गई है, ला यहतसिब। ठीक है माशाल्लाह। कोई बंदा और सुनाना चाहे? हाँ जी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी
समीर भाई, हमदुल्ला भाई, हाँ जी मठे हो यार, अब्दुल्ला नंबर घेन गए। चले चले चले। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो ऐसी बीवियों का नाम बताएं जिनका नाम ज़ैनब है, उनका मुकम्मल नाम बताना है। ज़ैनब नामी दो बीवी हैं, तीन बीवी हैं, दो, कौन कौन सी? ज़ैनब बिनते उमैया और ज़ैनब बिनते उमैर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाजिश नहीं है, हाँ जी, जहाज, ज़ैनब बिनते जहाज है। ज़ैनब बिनते जहाज जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगती थी? अमीर साहब, ज़ैनब बिनते जहाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगती थी? पुप्पी की बेटी थी, ज़बरदस्त। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश करके इनका निकाह किससे पढ़वाया था? किससे पढ़ाया था? हज़रत ज़ैनब बिनते जहाज का निकाह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोशिश के ज़रिए किस शख्स से पढ़वाया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी उसामा भाई, हाँ जी, हाँ जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सुन के जवाब देती है। अच्छा अच्छा, आपने ये जवाब देना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, रसूलुल्लाह सल्लम की बीवी, रसूलुल्लाह सल्लम की बीवी, नहीं 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 नहीं, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लम की ऐसी बीवी, उनका नाम बताएं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या लगती हैं, पहले वो बताएं और उनका नाम बताएं। नहीं नहीं, चुप 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 चुप, बेटी नाम क्या है? हाँ जी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा अच्छा जी, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह किस शख्स से हुआ था? हाँ जी अल्लाह दा बात सही है। हाँ, अब्द बिन असद से हुआ था। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, आप में से ये बताना है, जिससे पहला सवाल किया जाता है असल सवाल उससे होता है, उसको नहीं आता तो समझे कि बस उसको याद नहीं है। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम की ऐसी बीवी का नाम बताएं, इधर देखें, रसूलुल्लाह सल्लम की ऐसी बीवी का नाम बताएं जिनकी वफ़ात जो है वो 10 नबूवत को हुई है। उनका नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हाँ जी उसामा, हाँ जी, हाँ जी अब्दुल्ला, हज़रत खतीजा, ठीक है। अच्छा, आप में से उस एक शख्स ने ऐसे ने बताना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बीवी का नाम बताएं जिन्होंने शहादत पाई, और कौन सी हिजरी के अंदर शहादत पाई है? समीर, हाँ जी, कितनी हिजरी के अंदर वफात पाई है, पहले ये चीज़ जिक्र करनी है। हाँ जी, नाम उनका? हाँ जी, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ठीक हो गया। 4 बता दिए, पहले 4 बताया। अच्छा, ये बात बता दें कि रसूलुल्लाह सल्लम की ऐसी बीवी का नाम बताएं जो रसूलुल्लाह सल्लम के ज़ेरे किफ़ालत और आपके यहाँ सिर्फ 1 साल रही हैं, उनका नाम बता दें, उनका नाम बता दें। समीर, शर्जील, हंजला, उम्मे सलमा। भाई उम्मे सलमा है? नहीं है, उम्मे सलमा नहीं है, उम्मे सलमा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी अब्दुल्ला भाई, हाँ जी, हाँ जी शाह साहब, उसामा, ज़ैनब बिनते जहाश, 3 हिजरी में उन्होंने निकाह किए, 3 मारे हैं, 3 हिजरी के अंदर। अच्छा 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 अच्छा, मैंने वो 3-4 हिजरी ज़हन के अंदर रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गए।
अच्छा जी, कोई बंदा आप में से उस शख्स ने ये जवाब देना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। 3 बेटे थे। 3 बेटे थे। नहीं नहीं, पहले बताना है बेटे। 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। 4 बेटे थे मेरे भाई। टोटल बेटे बताने हैं, पहले बेटे कितने हैं आपके? 4 बेटे थे आपके। 4 बेटे थे। देखें, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम बचपन में ही वफात हो गए। 3 3 3 3 3 3 3 3 शाह साहब मैं भूलवे ना तुसा। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे चचाओं के नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। शर्जील। हाँ जी, हज़रत अब्बास। ठीक है। अच्छा, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बुनियाद पे निकाह किया था? किस बुनियाद पे निकाह किया था हज़रत खतीजा के? बेवा औरत थी। एक मिनट। ईमानदारी और दयानतदारी को देखते हुए जी किया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, एक लोगों ने इतराज़ किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो आपने जिस औरत से शादी की थी उस औरत का नाम बताएं कि किस औरत से शादी की थी तो इतराज़ हुआ था। हाँ जी, ठीक है। अब बताना है जी, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से वफ़ात जिनकी हो गई थी सबसे ज़्यादा किस बीवी को याद किया करते थे? हज़रत खतीजा को याद किया करते थे। आगे देख लें। आज पढ़ना है उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये लड़ाई में पकड़ी गई थी और साबित बिन कैस के हिस्से में आई। वो 20 साल 20 साल जवान थे, मगर उन्होंने कुछ रुपए उनको लगाया, मकातब कर दिया जिसके अदा करने से वो आज़ाद हो सकती थी। जवेरिया चंदा मांगने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और ये भी ज़ाहिर फरमाया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सारा रुपया अदा कर दिया जिससे ये आज़ाद हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर यह है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँ। ये आपने इस ख्याल से फरमाया कि अगर मज़ीद कैदी आएँ और उन्होंने भी चंदा मांगना तो क्या किया जाएगा। जब लश्कर ने यह सुना कि ये कैदी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार बन गई हैं तो उन्होंने तमाम कैदियों को छोड़ दिया। इस छोटी सी तदबीर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 से ज़ायद इंसानों को लोंडियाँ और ग़ुलाम बनाए जाने से बचा दिया। ये निकाह 5 हिजरी में हुआ और 56 हिजरी में जो है ना इनकी वफ़ात हुई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान उम्वी की बेटी हैं। जिन दिनों इनका बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई कर रहा था, ये उस वक्त मुसलमान हुई थी। इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ उठाई। फिर शोहर को लेकर हबश की हिजरत की। वहाँ जाकर इनका शोहर मुर्तद हो गया। ऐसी सच्ची और ईमान में पक्की खातून के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत थी कि इस्लाम के लिए बाप भाई ख़ानदान कबीला और अपना मुल्क वतन छोड़ा था। परदेश में खामन का सहारा था, उसकी बेदीनी से भी वो भी जाता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी साबरा के साथ 5 हिजरी में निकाह कर लिया। 5 हिजरी के अंदर कौन कौन सी बीवियों के साथ निकाह किया है, कौन सी औरतों के साथ निकाह किया है, ये जहन के अंदर रहना चाहिए। यह निकाह हबश में ही पढ़ाया गया था ताकि उम्मे हबीबा की मुसीबतों का जल्द खात्मा हो जाए और ये 44 हिजरी में वफ़ात हुई। ये हाँ जी, एक मिनट, ये मैं बात बड़ी अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर थे और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला जो है ना हबशा के अंदर थी तो निकाह हो गया था। यानी कि फ़ोन पे निकाह हो सकते हैं मेरे भाई। अगर बंदा दुबई के अंदर बैठा है, लड़की पाकिस्तान के अंदर है, फ़ोन पे निकाह हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में और जो है ये हबशा के अंदर है तो निकाह हो गया। ये निकाह हबश ही में बढ़ाया गया ताकि उम्मे हबीबा की मुसीबतों का जल्द खात्मा हो सके। हाँ जी, फ़ोन पे निकाह हो सकता है, ये दलील है। हाँ जी, फ़ोन नहीं होते थे मेरे भाई, ये दलील है इस बात की। फ़ोन नहीं होते थे, हमने इस्तदलाल की है। लाइव कॉल पे हो जाए निकाह, ठीक है, जायज़ है। हाँ जी, हाँ जी,
حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا ہے حبشہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے، حبش کے اندر نکاح ہوا ہے، آپ مدینہ کے اندر ہیں، ام حبیبہ کہاں ہیں؟ حبش کے اندر ہیں۔ بھائی علاقوں کا فرق ہے، وہاں پہ نکاح کیسے ہوا ہے؟ اگر وہ نکاح ہو سکتا ہے تو بھائی آن لائن بھی ہو سکتا ہے نکاح۔ ہاں جی، آن لائن نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، دلیل کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں صحیح ہے، ہاں جی ہو سکتا ہے، یہ دلیل ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، مجبوری تھی کہ ان کی مصیبتوں کا مثال کے طور پہ مجبوری ہے کہ لڑکی والے نا پھر نہ جائیں، ڈر ہے کہ لڑکا 1.5 سال بعد 2 سال بعد واپس آئے گا، کہ کوئی اور رشتے بھی زیادہ سارے آ رہے ہیں، کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو اس سے اچھا ہو، تو ڈر ہو تو پھر جو ہے نا بھائی یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، بندہ ساری زندگی روتا رہتا ہے، پھر ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اچھا دے دے۔ ہاں جی دلیل ہے بھائی، ہم نے کوئی بے دلیلی بات کی ہے؟ آپ مدینہ کے اندر ہیں، ام حبیبہ حبشہ کے اندر ہیں۔ ہاں جی، مصیبت وہ وہاں پہ گواہ بیٹھے ہوں گے، اس کے ولی گواہ بنیں گے، اس کے ولی گواہ ہوں گے، گواہ تو ولی بنیں گے۔ جلدی دیکھ لیں، اذان ہو جائے، یہ سنتے ہیں آپ سے۔ کلبلا کرو سجان، آتی ہے ویسے سب کو؟ اچھا سنا دیں آپ، دیکھ لیں، جس کو آتی ہے وہ سنائے۔ فی عاقبہ کا ترجمہ، وفصا کا ترجمہ، وفصح، ہاں جی، کل دوبارہ یاد کر کے آئیں، ہر بندے کو یاد ہو۔